So welcome back. Let's start with the question number 2. Let's understand it's very much similar to the question that we already did. Question 1 के जैसा ही है. So I'll give this question as a part of your homework. Same ऐसा है, कोई फर्क नहीं है. So I'll give this question as a part of your homework. वैसे ही आपको देखो पहले साल की प्रोबेबिलिटी, पहले साल का एक्सपेक्टेड इनफ्लो, फिर दूसरे साल का इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी, वो सारा दिया हुआ है. Now, for your reference purpose, you also have a modules, but for your reference, quickly अगर आपको देखना है तो आप देख सको, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है. Now we'll move on the next question, that is the question number 3. Let's understand this question. Question number 3. Please pay attention. This question has the concept of standard deviation, or we can say that the technique of standard deviation we are using here for the purpose of project evaluation. So project evaluation हम करेंगे on the basis of standard deviation technique. उसके लिए coefficient of variation वो भी हम ढूंढेंगे, कैसे सारा कैलकुलेशन करना है. That is what it has been covered in this particular question. So let's read the question, let's have an understanding of the question, and then we can discuss more on the particular question. So let's see. Basically, this illustration 3 has two questions. There is A and B. Both the question are different questions, so there is no interlinkage between both of them. दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं और दोनों क्वेश्चन अलग ही हैं. सो इट इज़ नॉट दैट पार्ट एक क्या कुछ एक्सटेंडेड रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कुछ यहाँ पे पूछा है, ऐसा नहीं है. दिस इज समथिंग दे आर आस्किंग. A and B both are independent question, has no relevance or no I'll say that kind of connection with each other except the concept. So let's see what is the question. A company is considering two mutually exclusive project X and Y. So first point, understand, mutually exclusive project means we know that either you can go with an X or you can go with an Y. You cannot go partly with X and partly with Y. So that is how it is, mutually exclusive project X and Y. Project X cost rupees 3 lakh while the Y cost rupees 3 lakh 60,000. So if you are accepting project X, you would be required to spend 3 lakh rupees. If you are accepting Y, you would be required to spend 3 lakh 60,000 rupees. You have been given below the net present value and the probability distribution of each project. So दोनों का X का और project Y का दोनों का expected NPV. So NPV का estimate और वो NPV होने की probability दी हुई है X और Y दोनों की. तो इसके बेस पे ये expected NPV and the probability, इन दोनों के बेस पे we would be required to find out, compute expected net present value of project X and Y. तो टोटल नेट कितना होगा सारी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए वो एनपीवी ढूंढना, वो बड़ी बात नहीं है. सिंपली सिर्फ वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी विथ एन एस्टिमेटेड एनपीवी, दैट्स इट. compute the risk attached to each project. तो ये risk attached to each project is nothing but a calculation of standard deviation. तो ये जो probability है उसका standard deviation. तो standard deviation का मतलब क्या होता है basically, please understand. The name itself suggests the meaning. The possibility of deviation from expected return is known as a standard deviation. मतलब क्या कि अगर मुझे यहाँ से, just for an example, if I need to travel from here to Mumbai, the number of kilometers which I need to travel would be 400 kilometers, and if I would be running at the speed of 100, then I would be reaching to Mumbai within 4 hours with a standard deviation of 10 kilometers per hour. So मतलब क्या कि कभी कभी मैं 110 पे भी जाऊंगा, कभी कभी मैं 90 पे भी जाऊंगा. सो मेरा जो टारगेट था 100 किलोमीटर का, उससे मैं कितना डेविएट हो सकता हूँ उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्क है प्रोजेक्ट में. मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है हमारे स्पीड के अंदर, तो मैं मिनिमम 90 पे तो जाऊंगा ही जाऊंगा. मैक्सिमम भले 110 तक ही जाऊँ, लेकिन मैं जाऊंगा मिनिमम 90 पे, तो मैं जाने ही वाला हूँ. लेकिन अगर
मेरा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है 50 का, मतलब मैं 100 की जगह पे कभी कभी 50 पे भी जाऊंगा, कभी कभी 150 पे भी जाऊंगा। सो इट इज़ वेरी रिस्की सिचुएशन जहाँ पे 150 पे आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है और 50 पे आप बहुत लेट पहुंचोगे। तो बेसिकली आप रिस्क जब इवेल्युएट करते हो किसी प्रोजेक्ट का, तो दैट रिस्क इवेल्युएशन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आप बोल दो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कि आप कितना वेरी करोगे अपने प्रोजेक्ट से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो दो फैक्टर हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे टू इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट कितना टाइमली कंप्लीट होगा या फिर सिचुएशन हमारे हिसाब से होगी या नहीं होगी। तो वो रिस्क इवेल्युएशन हम यहाँ पे करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की, विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की, तो अगर आपका इसको ओरली आंसर देना है विदाउट कैलकुलेशन ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो द प्रोजेक्ट विच हैज अ हायर स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मोर रिस्की, आप ऐसा बोल सकते हो। And we also would be required to compute the profitability index of both the projects. So that is the part A. Part B is an altogether different question. First, we'll deal with the part A, and then I'll come back and again I'll read the part B because it's a separate question. So you can say that it's a 3A and 3B two separate questions. So अभी हम कर रहे हैं सिर्फ 3A. So अगर 3A की हम बात करें तो 3A में हमारे पास क्या information है? 3 में हमारे पास है information that we have a two project X and project Y. Project X has an outflow of 3 lakh rupees. Project Y has an outflow of 3,60,000 rupees. Project X has certain expected NPV with the respective probability of each and every NPV. Project Y also have certain NPVs expected, and it also has certain possibility or the probabilities which we have. Keeping in mind all this possibility and the probability and the deviation between expectation, we'll find out the standard deviation and coefficient of variance, and then on the basis of that we would be deciding which project is more risky, which project is less risky. The project which is more risky should not be accepted, और क्यों कैसे वो आप एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको साथ में, तभी आपको समझ में आएगा। सो दिस इज वी आर डूइंग फर्स्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्स, बहुत ध्यान से देखना बिकॉज यहाँ पे ना नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो आप देखो अगर प्रोजेक्ट एक्स में, तो प्रोजेक्ट एक्स की सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड एनपीवी दी हुई है, ये सारी एक्सपेक्टेड एनपीवी है, और उन सारों की होने की पॉसिबिलिटी है कि भाई 30,000 होने की पॉसिबिलिटी है 0.1, 60,000 होने की पॉसिबिलिटी है 40%, 120 की भी 40%, 150 की 10%, तो वो सारी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव दिस अमाउंट, कि भाई एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करके कितनी हो रही है। सो इंडिविजुअल अमाउंट का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। नेट एनपीवी कितनी आती है 90,000, नेट एनपीवी सारी पॉसिबिलिटी सारी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करके कितना आ रहा है 90,000। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो देयरफॉर I'll do the y also here because I want you to understand certain things. Y में भी जितनी भी एनपीवी है वो सारी दी हुई है, उन सारे की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उनका समेशन किया, तो उसकी भी आप देखोगे एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों की सेम आ रही है, ये भी 90 है ये भी 90 है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, और दैट इज वेयर द रिस्क एनालिसिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। व्हाई? बिकॉज व्हेन द प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई both are giving same amount of NPV, X and Y both are giving same amount of NPV, then your selection criteria cannot be an absolute figure of an NPV, then your selection criteria would be more in risk aspect के कौन से प्रोजेक्ट में कम रिस्क है, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट आपको अर्न करके दे रहे हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट में कम रिस्क है, दैट प्रोजेक्ट यू विल प्रोबेबली चूज और प्रोबेबली सेलेक्ट। That is where this risk analysis plays a very crucial role. तो अभी ये दोनों कैलकुलेट हो गए, वापस से मैं एक्स पे आ जाता हूँ। हमने ये 90,000 कैलकुलेट कर लिया, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये हमने सिर्फ मुझे दोनों का इतने तक मैंने इसीलिए कैलकुलेट किया बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का एक्सपेक्टेड एनपीवी कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स आर सेम। तो अगर ये फैक्टर दोनों के सेम रहते हुए या फिर उसको सेम रख के अभी कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, तो वहां पे आपका रिस्क इवेल्युएशन विल कम इन टू द प्ले। सो अभी डेविएशन हम कैसे ढूंढेंगे, तो डेविएशन आप देखो कैसे हम ढूंढ रहे हैं, प्लीज बेर इन माइंड क्या हम कर रहे हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड, ये केस के अंदर ना आपकी एनपीवी एक्सपेक्टेड है 30,000 रुपीज, ये केस में आपकी एक्सपेक्टेड एनपीवी है 30,000 रुपीज,
जबकि सारी पॉसिबिलिटी को अगर हम कंसिडर करें तो वो आता है 90। तो मीनिंग देयर बाय आप अपने एक्सपेक्टेड सारी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए अपने एक्सपेक्टेड एनपीवी से कितना दूर है, तो आप 60 दूर हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ नेगेटिव। सिमिलरली इन दिस केस इट कम्स टू 60,000। 60,000 आपकी ये एनपीवी से कितना दूर है, तो ये 60,000 आपकी ये एनपीवी से 30,000 दूर है। हाँ, आपकी सारी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए हमारी जब 90 आ रही है और इंडिविजुअल जब कम है तो हम डेविएशन ढूंढने का ट्राई करते हैं कि भाई डेविएशन कितना आ रहा है। सिमिलरली फॉर दिस टू ऑल्सो, बट इन दिस टू केसेस द आंसर विल कम पॉजिटिव, इन दिस टू केसेस आंसर विल कम नेगेटिव। बट ये नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है ना, तो पहले मुझे ये जो डेविएशन आया उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। सो ये जो 60,000 आया उसका स्क्वायर रूट का, ये 30,000 आया उसका स्क्वायर रूट का, ये 30 का भी स्क्वायर रूट किया। तो जैसे आप स्क्वायर करते हो, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, जैसे ही आप स्क्वायर करते हो तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाने वाला है। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स एन पॉजिटिव। सो आपने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ये आपकी फिगर आई। दिस इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच यू मस्ट हैव लर्न or understood as a part of the statistics in your SYBCom. But again, we are doing it to have a more better understanding, keeping in mind the risk analysis for the project evaluation. तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया आपका, जहाँ पे आपने डेविएशन को स्क्वायर किया और ये आपका स्क्वायर ऑफ द डेविएशन आया, ये स्क्वायर ऑफ द डेविएशन को, ये स्क्वायर ऑफ द डेविएशन को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। ये स्क्वायर डेविएशन को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। तो आपने ये मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, सो इसको आपने 0.4 से मल्टीप्लाई किया। सो आप मत सोचो कि पहली फिगर आएगी वो सारे में सेम आ रही है, दैट इज जस्ट एन कोइंसिडेंस। तो हमको ये स्क्वायर ऑफ द डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से, फिर उसकी सिग्मा फिगर ढूंढिए यहाँ पे। summation of all this is 14 crore, sorry 14,40,000, no, it's quite a bit high, I'm not going into that. So that 14.40 आ रहा है sigma of all deviation. The same treatment we did here, उसका भी हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद उसको भी उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो दोनों अमाउंट, सारी अमाउंट सेम नहीं आ रही है, और इसका भी हमने सिग्मा किया। तो हमको दोनों प्रोजेक्ट का स्क्वायर डेविएशन विद प्रोबेबिलिटी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे और हम ये जो फिगर है वो ढूंढ रहे हैं। सो इसको भी अंडर रूट किया, यहाँ से लेके आप देखो यहाँ पे, और इसको अंडर रूट किया ये फिगर को यहाँ पे। हाँ, और हमने ढूंढा, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपको पूछे कि प्रोजेक्ट एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो आप बोल सकते हो 37947। वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 44497। इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। तो अभी आप सोच लो यहीं से ही कि आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी is 90,000, your expected NPV is 90,000। तो जब आपका expected NPV है 90,000, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 37 मतलब क्या, 37,000 या फिर 38,000 अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या, कि उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्चुअल एनपीवी होगी वो 90,000 से 38,000 कम भी हो सकती है, 38,000 ज़्यादा भी हो सकती है। सो इट वर्क इन बोथ द केसेस, ज़्यादा भी हो सकती है, उतनी कम भी हो सकती है। जबकि वाई के केस में वो है 44,000 या फिर 44,500। तो 90,000 से 44,500 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच कैन टेक अ डिसीजन हियर। वाई? बिकॉज बोथ द प्रोजेक्ट, in our example, just for a coincidence, both the project have a same NPV, तो हमने वहाँ पे ढूंढा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो दोनों की वो 90 ही है। तो हमने परसेंटेज ढूंढा कि भाई कितना दूर जा सकते हैं हम हमारे एक्सपेक्टेड एनपीवी से।
हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा आई। तो जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना, तो दैट प्रोजेक्ट इज नॉट सिलेक्टेड। देखो इसीलिए प्रोजेक्ट वाई इज रिस्कियर सिंस इट हैज़ हायर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये पर्टिकुलर केस में ना हम डिसीजन इसके बेस पे भी ले सकते थे कि भाई वाई को आप सिलेक्ट मत करो बिकॉज दैट इज मोर रिस्की। क्यों? क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम ही थी। लेकिन जब दो प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड एनपीवी अलग अलग है तो आप एब्सोल्यूट फिगर पे वापस से नहीं जा सकते हो बिकॉज absolute figure is like an NPV. Profitability index is a more better criteria. So therefore इसलिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा इन ऐसे इन परसेंटेज टर्म के आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से प्रोजेक्ट का ज्यादा है इन अ परसेंटेज टर्म। सो यहाँ पे क्योंकि दोनों की सेम है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे सिलेक्शन कर सकते थे दैट यू सिलेक्ट प्रोजेक्ट एक्स rather than going with the project Y because project Y has a higher standard deviation. That means it has a higher possibility that it will deviate from its expected NPV of 90,000. So Y should not be selected, X should be selected. And on the basis of that हमको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ढूंढने की। तो वो भी अगर हम ढूंढते हैं तो ये है एनपीवी, ये है आउटफ्लो और आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एक्स का ही ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी वाई ज़्यादा रिस्की था तो यहाँ पे भी एक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हमने क्या किया मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। What kind of information we have? First of all, let's understand that we have been given two different projects, project X and project Y. Project X was having an outflow of 3 lakh, project Y was having an outflow of 3.6 lakh. दोनों की एक्सपेक्टेड एनपीवी विथ रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू अस। दोनों की एनपीवी with expected amount of probability was given to us, and on the basis of it what we did, we expected npv ढूंढी हमने। दोनों की कोइंसिडेंस की सेम 90,000 ही आया। कोइंसिडेंसली तो नहीं था लेकिन हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए इसलिए दोनों को 90,000 के हिसाब से सेट किया था क्वेश्चन ने। तो अब जब दोनों की एनपीवी सेम 90,000 है तो कौन सा प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करें? तो हम वो सिलेक्ट करना चाहिए हमें जिसका रिस्क कम है। सो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढ सकते हैं? हम पहले डेविएशन ढूंढेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी को कंपेयर करके प्रोबेबल एनपीवी को, दोनों को एक्सपेक्टेड एनपीवी एंड प्रोबेबल एनपीवी को कंपेयर करके हम पहले डेविएशन ढूंढेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, वो स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उन सारे का सिग्मा ढूंढेंगे, फिर उसको अंडर रूट कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का ढूंढ लिया। यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं सिर्फ ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेड एनपीवी सेम है इसलिए। अगर वो नहीं होता तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एनपीवी करके हम ढूंढेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आता है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। नाउ लेट्स गो टू द पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज अ पार्ट बी? ये क्वेश्चन आप समझ लो कि जैसे कि क्वेश्चन 1 हो गया तो ये है क्वेश्चन 2। हाँ, दोनों क्वेश्चन आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हाट क्वेश्चन बी हैज अ पार्ट ऑफ ऑफरिंग टू अस? लेट्स अंडरस्टैंड। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, यहाँ पे था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। So again, determine the risk adjusted net present value of the following projects. So projects are project A, B and C. तीनों का कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, तीनों की प्रोजेक्टेड लाइफ दी हुई है, तीनों का एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है। एनुअल कैश इनफ्लो कितना होगा? तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है। तो आप देख के इसको लगेगा कि यार सबसे रिस्की तो ये सी वाला है, लेकिन जस्ट वेट। कंपनी सिलेक्ट द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब क्या कि भाई कोएफिशिएंट को वेरिएशन के हिसाब से हम हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर सिलेक्ट करेंगे। सो 0.4 वाला जो होगा उसका होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर 12%,
0.8 तो 0.8 वाले का होगा 14%, 1.2 वाले का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 16%, और हमें ढूंढना है इतनी चीज़ों को यूज़ करके रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। कुछ है नहीं, आई कम एंड आई एक्सप्लेन। सो अब देखो यहाँ पे ये है हमारा पार्ट बी। तीनों का पहले तो हमने आउटफ्लो लिख दिया, तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिख दिया, उसके हिसाब से उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर मेंशन कर दिया, और हर एक प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड एनुअल इनफ्लो लिख दिया, और 12% के हिसाब से 5 साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे तो 12% का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, 5 साल का 14% का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, 5 साल का 16% का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर, 5 साल का, वो सारा हमें रेडीमेड दिया हुआ ही है। सो हमको सिर्फ उसको रिस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो हमें ढूंढना है, उसको माइनस करना है आउटफ्लो में से, एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इट सीम्स दैट दिस इज द बेस्ट because it is having an highest amount of NPV. So ये क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता था कि अगर आप ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट भी कर रहे हो, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या तो डिस्काउंटिंग फैक्टर उतना ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए अगर आपने देखा हो यहाँ पे, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे ज़्यादा है, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी सबसे ज़्यादा है। तो वो चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि देखो इसका क्यों 16 है और इसका क्यों 12 है, बिकॉज दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का अलग है, इसके लिए दोनों का एक्सपेक्टेशंस भी अलग है। सो एक एक चीज़ आप मान के चल सकते हो कि ये उसका एक बीटा फैक्टर जैसा है कि जितना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, रिस्क उतना ज़्यादा, जितना रिस्क ज़्यादा उतना एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जिस्टिंग पेपर स्टाइल के अंदर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट यू पीपल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग ट्रीज standard deviation, because this could be very good question for, I'll say, an objective type of question paper. This could be very interesting things which they can ask, and if you are not able to understand, then you will be losing a mark. So हमने क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढना है वो देखा। कैसे ढूंढना था एक बार क्विकली बता देता हूँ मैं आपको। प्रोबेबल एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबल एनपीवी एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी, उसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से, सिग्मा किया, सिग्मा को हमने अंडर रूट किया, वो हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढा। एक बार दोनों प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढा। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी, जो 90,000 था हमारे केस में, वो तो हमको मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा, दैट इज मोर रिस्की, डोंट सेलेक्ट दैट। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम, लेस रिस्की, सेलेक्ट दैट, बिकॉज बोथ हैव सेम एनपीवी। दैट वाज अ पार्ट ए। पार्ट बी में हमें रिस्क के हिसाब से हमको सिलेक्ट करना था, रिस्क बेस। अब देखो रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ढूंढनी थी यहाँ पे, तो रिस्क एडजस्टेड एनपीवी कैसे ढूंढी? कुछ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर सेलेक्ट किया, और डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके हमने एनपीवी ढूंढी, रादर देन हैविंग द सेम डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ risky project would be the wrong approach. Therefore, we adjusted our expectation on the basis of risk associated with a particular project. Fine. So that is all about this lecture. I will meet again in the next lecture. Meanwhile, please take care of yourself. Stay home, stay safe, stay connected, and keep reading. Thank you very much.